Chairman Global Islamic Finance Awards, Dr. Humayun Dar, Governor State Bank of Pakistan, Dr. Raza Bakhir, Dr. Shamshad Akhtar, ex-Governor of State Bank, some Sharia scholars here, welcome, foreign delegates, ladies and gentlemen, excellencies, Assalamu alaikum. And those who have come from abroad, a warm welcome to Pakistan. It is a matter of great pleasure that the 10th Global Islamic Finance Award ceremony is being held in Pakistan, and it recognizes contributions made in this sector. And some of the delegates may be present in a video link, so I welcome the entire conference. I believe the Islamic financing has been increasing throughout the world, and the figure which was mentioned was $2.7 trillion in products in all countries of the world. But at the same time, if I can remember, the global finance is much bigger than this, and this is probably not even 1 or 2% of what is possible. But especially, I must appreciate that 17% of Pakistan's banking sector is tuned to Sharia compliant instruments, and out of which 50% of auto and about 60% of housing, as mentioned by the Governor State Bank, is in Sharia compliant mortgages. And of course, the sukuk, which has been floated in the energy sector, probably close to 400 billion rupees. I think that is very important. And it allows the people to participate in a Sharia compliant financial instruments in the profits or in the investments which are being made. The role of State Bank of Pakistan, of course, is very commendable. Thank you very much, as well as the Securities Exchange Corporation of Pakistan. What I've been seeing, there is one issue which I must bring forward to you and which was pointed out in a study recently or a few years ago, which the Governor State Bank pointed out, is the awareness of people as far as Islamic banking is concerned. Before you standing here is a person who was unaware of it. But just the fact that the product had Islamic banking stuck to it, I took a loan from a Sharia compliant instrument. But to be frank with you, I don't know the difference. I didn't know the difference. I still don't know the difference. But it gave me satisfaction that it was a Sharia compliant instrument. So that means there's an anomaly somewhere. And that is what I'm going to bring forward to you today. You would have had traditional speeches when people talk about whatever is being done. I must congratulate you for the hard work which has happened. But at the same time, Islamic financing to me is a far bigger area than just lending money in a Sharia compliant way. It's far bigger. And before I came, I just made out some ideas, put my ideas onto paper. Of course, Sharia compliant Mudareba, which is profit and loss, Musharika, which is a joint venture, Ijara, which is leasing, Murabeha, etc., are looking at ways and means whereby the spirit of Islam does not get trampled upon by the financial instruments which were developed over the last 500-600 years. And what were the financial instruments which were developed in the last 500 years? The concept of making a profit out of lending has always been there. But the fact that the institutions, lending in Europe, matured in the 13th and 14th centuries, in Venice, for example, in other European areas, for example, where people's investment, rather than just a deposit and a loan related to the deposit, putting gold into a bank or with a person and taking a loan out of that money,
Rather, beyond that, financial instruments started coming up. But the biggest challenge happened, and I will relate it back to COVID. और मेरा ख्याल ये है कि आप इतने सारे लोग यहाँ उस ज़बान में समझने वाले भी मौजूद हैं जो उर्दू के अंदर मैं बयान करूँ, मेरी रवानी बेहतर हो जाएगी और आपसे बात भी मुकम्मल कर सकूँगा। तो हुआ ये, कोविड के अंदर क्या हुआ, कोविड के अंदर एक चैलेंज आया कि हुकूमत क्या करे, मुलाजमतें और ये सब इनकी जाएंगी तो कुछ ना कुछ एहसास होगा। तो ब्लैक डेथ जब प्लेग आया यूरोप के अंदर तो एक बहुत बड़ी चेंज आई। चेंज ये आई कि 30-40% नौजवान मर गए उस प्लेग के अंदर। तो लिहाजा द सप्लाई ऑफ लेबर वॉज शॉर्ट एंड द डिमांड ऑफ लेबर वॉज वेरी हाई। तो कुछ मुल्कों के अंदर कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बन रहे थे और बन गए थे, मगर 3 ममालिक का मैं आपके सामने नाम लूँगा, फ्रांस का, इंग्लैंड का और स्पेन का, और फिर यूरोपियन ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ का। तो क्या हुआ, और ये इस बात को अगर आप समझ लें तो आपको अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान अब कहाँ जा सकता है। तो हुआ क्या कि इंग्लैंड ने कानून पास किया कि जो बीमारी से पहले तनख्वाहें थीं वो वही रहेंगी, बट वर नॉट एबल टू इम्प्लीमेंट इट क्योंकि सप्लाई एंड डिमांड वाली कैफियत मौजूद थी। मजदूर ने कहा मैं नहीं काम करता, तो उन्होंने एक और कानून पास किया। उन्होंने कहा जो काम नहीं करेगा उसको सज़ा दी जाएगी और जो अपना मालिक बदलेगा उसको सज़ा दी जाएगी। अच्छा, कुछ और चेंजेस हुई कि वहाँ के इन तीनों ममालिक के इंस्टीट्यूशंस खुद भी तरक्की कर रहे थे। और स्पेन तो फतूहात है पेरू के अंदर और इंकाज, और वहाँ से खूब लूट मार करके सोना वोना सब कुछ ले आए थे। उनको इतनी फाइनेंसिंग की ज़रूरत, स्टेट बादशाह को इतनी फाइनेंसिंग की ज़रूरत नहीं थी। इंग्लैंड उस ज़माने में उस तरफ साउथ अमेरिका की तरफ नहीं गया, उसको बड़ी ज़रूरत थी। तो जब बादशाह कहता था कि जी मुझे टैक्सेस की ज़रूरत है और ये काम करना है, तो इंस्टीट्यूशंस कहते थे कि तुम्हारे ताकत जो है वो हम थोड़ी सी और कम करना चाहते हैं और आवाम को देना चाहते हैं। तो सबसे ज़्यादा वहाँ फ़र्क आया, फ्रांस में, स्पेन में कम आया, उसके बाद फ्रांस में आया। मगर ईस्टर्न यूरोप में क्या हुआ, ईस्टर्न यूरोप में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स डेवलप नहीं हुए, वो अपने किसानों पर और दहकानों पर उसी तरह से जुल्म करते रहे और मामला बढ़ता गया। तो कोविड इज़ अ सिमिलर चैलेंज टू द फाइनेंशियल मार्केट्स ऑफ द वर्ल्ड। सिमिलर चैलेंज अगर मैं और आप उसको समझें, और स्पिरिट क्या होगी समझने की। देखिए, सिर्फ लेन देन इस्लामिक फाइनेंसिंग की बुनियाद नहीं है, कंपैशन उसकी बुनियाद है। अच्छा, ये एहसास प्रोग्राम जो हुआ यहाँ हुआ वो एक कंपैशन की बुनियाद पर प्रोग्राम था, उसका लेन देन से कोई ताल्लुक़ नहीं। मगर मैं आपसे कहता हूँ कि इस्लामिक फाइनेंसेस के चंद 5 प्रिंसिपल्स मेरे जहन में आते हैं कि जो मैं आपके सामने रखूँ। एक है फेयरनेस और इंसाफ। फेयरनेस हो, फेयरनेस इस बात का नहीं कि जो कर्ज़ा ले रहा है वो कर्ज़ा वापस करे, उसके साथ इंसाफ हो। माशरती इंसाफ की बात आपके सामने कर रहा हूँ। दूसरा फेयरनेस है कि लोग बराबर हों, एक यकसा अंदाज से ट्रीट हों, और फिर जस्टिस है जिसको इंसाफ कहते हैं। तीसरा एक इक्वालिटी की बुनियाद पर हो कि जो चीज़ें सबको अवेलेबल हैं किसी न किसी तरह से वो हर सेक्टर में नीचे तक ले जाई जाएं। चौथे ट्रांसपेरेंसी हो, छुप कर कोई काम नहीं हो। छुप कर जो काम होता है वो इस्लाम की नज़र में और दुनिया की नज़र में उसमें ख़राबियाँ पैदा होने लगती हैं। और 5वां उसूल जो है वो परसूट ऑफ सोशल हार्मनी। अच्छा, बड़ी अजीब सी बात है कि फाइनेंशियल, यानी आज से 15-20 साल पहले तो ये बात भी नहीं होती थी कि कैपिटलिज्म को कुछ जिम्मेदारी उठानी चाहिए सोशल सेक्टर की। और हो क्या रहा है, जो जिस तरह से, और मैं बता दूं, मैं यहाँ नाम अभी सुना, माशाअल्लाह मौलाना तकी उस्मानी साहब को आपने अवार्ड दिया, और मौलाना तकी उस्मानी साहब ने पॉइंट किया कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ के ऊपर भी, कि इस्लामिक एटीट्यूड ऑफ फाइनेंस एंड वेल्थ में कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ जो दुनिया में आम है आज, वो इस्लामिक फाइनेंसिंग के ज़रिए और इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेड और इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ वेल्थ एक्यूमुलेशन से बिल्कुल मुतज़ाद है, बिल्कुल मुतज़ाद है, टोटली। आई डोंट बिलीव कि इट इज़ पॉसिबल कि
some companies can be far richer than countries, and then unrepresented companies who do not have people, elected people on the board of directors, run the world in a manner it is being done today. It is actually being run in a different manner by people. फेसबुक से अपील करनी पड़ती है मुल्कों को कि भाई ये हमारे यहाँ इंतशार पैदा कर रहा है, इसका नाम तुम निकाल दो या इसका अकाउंट तुम ख़त्म कर दो. Do they have a morality background of any sort? They have a morality determination of any sort? तो इससे एक और चीज़ जन्म पाती है, और वो भी मैं समझता हूँ आपके सामने रखें कि दुनिया के अंदर जो एक्सप्लॉयटेशन की कैफियत है वो बढ़ती जा रही है. तो जहाँ मैंने मौलाना तकी उस्मानी साहब की बात की कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ पर, तो आप लोग तो पढ़ने वाले हैं मईशत को, और मैं तो एक lay person हूँ as far as finance is concerned. But recently I read number of books जिसके अंदर एक थॉमस पिकेटी की एक कैपिटल है जो 2013 के अंदर उसने छापी थी, और एक अभी है कैपिटल एंड आइडियोलॉजी जो 2020 में फरवरी में छापी गई. उसके अंदर ये इस्लामिक फाइनेंसिंग के उसूलों की बात आपसे कर रहा हूँ. उसमें कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ के एतबार से बहुत बड़ी बहस है कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इस वक्त कैपिटलिज्म, इररिस्पॉन्सिबल मनी एक्यूमुलेटिंग एक्सप्लॉयटेटिव कैपिटल किस तरह से वेल्थ कंसंट्रेट कर रहा है. एंड सरप्राइजिंगली इट वाज शॉकिंग फॉर मी, एंड आई शेयर्ड अ ग्राफ आई थिंक ऑन ट्विटर ऑल्सो फ्रॉम दैट बुक. और वो ग्राफ ये था कि पिछले 2014 से 2018 तक इंडिया एंड द गल्फ रीजन्स के अंदर जो वेल्थ डिस्पैरिटी आई है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा आई है. सबसे ज़्यादा डिस्पैरिटी बिटवीन द कॉमन मैन एंड द वेल्थ बीइंग एक्यूमुलेटेड एट द टॉप. तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की मंजिल और पाकिस्तान का डायरेक्शन कैपिटल एक्यूमुलेशन इन एन एक्सप्लॉयटिव मैनर का हो ही नहीं सकता. इस्लामिक फाइनेंसिंग और इस्लामिक इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ट्रेड और इस्लामी माशरे के अंदर इस बात का इम्कान नहीं है कि एलिटिज़म यहाँ पर बढ़े. इसी अंदाज से आप ये जो पूरा एक देहकल कैफियत है जो माशरों को घुन की तरह खा रही है, और वो है ये कि एलिटिज़म हर चीज़ में आ जाता है, तालीम के अंदर आ जाता है. इस वक्त तालीम इतनी एलिटिस्ट है, एंड अगेन रेफरिंग टू थॉमस पिकेटी एंड अदर एजुकेशनल सर्वेज बीइंग डन, कि मगरिब के अंदर तालीम एलीट क्लास के बच्चों की तालीम तो हो सकती है आसानी से, बाकी आम आदमी के बच्चों का इम्कान ही नहीं वहाँ जाने का. अच्छा, ये वो चैलेंजेस हैं जो हम जिनका हमारा मुकाबला है. इस्लाम का इस एलिटिज़म से कोई ताल्लुक़ नहीं. और अगर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ताज़ा किताब आई है रेविलेशन के नाम से, नाम मैं भूल रहा हूँ ऑथर का, रीसेंट बुक में मेरे ख्याल से 1-2 साल पहले की बात है, और मैं सोचा था लिख लूँगा, नाम भूल जाता हूँ. उस किताब के अंदर, एंड इज़ अ पाकिस्तानी ऑथर लिविंग इन बॉस्टन, उस किताब के एतबार से तो द रियल रेवोल्यूशन वहदानियत वाली रेवोल्यूशन नहीं था ज़रूर, क्योंकि लोग पूजा करते थे दूसरे देवताओं की सवाए अल्लाह वाहिद अल्लाह के अलावा, तो लिहाजा वो चैलेंज करने आए थे. मगर ये मैसेज ये नहीं था माशरे के अंदर, ये मैसेज था एंकर अल्लाह सुब्हानहू तआला की गुफ्तगू और बात कुरान के अंदर जो आई, और एक कम्युनिकेटर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, और एक प्रैक्टिस करने वाला हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूप में. एंड दैट चैलेंज द इस्टेब्लिश एलिटिस्ट कल्चर ऑफ मक्का एंड इस्टेब्लिश एलिटिस्ट कल्चर ऑफ सऊदी अरेबिया. असल चैलेंज ही यही था, असल मैसेज ही यही था कि इंसान को बराबरी की तरफ लाया जाए और इंसान को बराबर किया जाए. तो ये जो चैलेंज था, ये फाइनेंशियल चैलेंज था टू हैंडल इट, और उसकी रूह वहदानियत के साथ और उसकी रूह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ. और फिर उस चैलेंज को, वो चैलेंज वो था जब इम्प्लीमेंट किया गया तो दुनिया के अंदर एक चेंज आई. दुनिया आजकल मोरालिटी की कोई अहमियत नहीं है दुनिया के अंदर. आप इंस्टीट्यूशन देख लीजिए, यूनाइटेड नेशंस देख लीजिए, आप सारे इंस्टीट्यूशन देखिए, मोरालिटी की कोई अहमियत नहीं है. और अगर इंसानियत ने बदलना है तो मोरालिटी एंकर होगा, तब इंसानियत बदलेगी.
इंसानियत माल और दौलत के ज़ख़ीरा करने के अंदर सिर्फ इंसानियत को नुकसान नहीं पहुंचा, दुनिया जिसके अंदर वो कैपेसिटी नहीं है कि प्रोड्यूस करती रहे और अपने सीने में से वो चीज़ें उगलती रहे जो एक अच्छे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए ज़रूरी है, दुनिया के अंदर भी वो कैपेसिटी नहीं है। तो जहाँ इंसान मिज़री में है तो इंसान का मुस्तकबिल भी मिज़री के अंदर नज़र आने लगा, तो लिहाजा सोचा जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि एक तो मल्टीनेशनल्स के एतबार से भी सब के बैंक सब यहाँ बैठे हुए हैं, मैं समझता हूँ कि अब उसूल हर कारोबार के और हर इदारे के उसूल मुख्तलिफ होने चाहिए। प्रॉफिट मेकिंग अलोन शुड नॉट बी द अंडरलाइंग फैक्टर फॉर बिजनेस और इंडस्ट्री। क्या फैक्टर्स होने चाहिए कि ये जो कारोबार है ये हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं और वर्कर्स के लिए भी अच्छा है, नहीं है, एक्सप्लॉयटेटिव कैपेसिटी नहीं होनी चाहिए। दैट डजंट मीन कि आप वर्कर को ऐसी तनख्वाह दें कि ही शुड हैव अ 5 स्टार लाइफस्टाइल, डजंट मीन दैट। इट मीन्स कि कम से कम उसकी एसेंशियल्स का एहतियात तो करें ना। पाकिस्तान के अंदर कम से कम उसकी ज़िंदगी के एतबार से तो एहतियात करें। एक्सप्लॉयटेटिव मैकेनिज़्म एग्जिस्ट करते हैं, यानी अगर सरकार तनख्वाह मुकर्रर करती है 17,000 की तो लोग 11-12 हज़ार के अंदर कॉन्ट्रैक्ट लेबर के थ्रू काम करते हैं। तो ये नाइंसाफ़ी जो है ये माशरे के अंदर तकलीफ़ पैदा करती है। कोई इस्लामी तरीक़ाकार इस बात की इजाज़त नहीं देता। दूसरी बात क्या है कि ये जो इंडस्ट्री है या जो कारोबार आप कर रहे हैं और अगर आप इस्लामिक फाइनेंसिंग के उसूलों को आप इम्प्लीमेंट करें तो क्या ये माशरे के लिए भी कारोबार अच्छा है, कम्युनिटी के लिए भी अच्छा है या नहीं है? यू कांट हैव अ बिजनेस which is harmful for the community or which can be harmful or exploitative to be allowed। और आज और कल की दुनिया के एनवायरनमेंट के एतबार से भी सही। अब ये सवाल आने लगे ना, पहले तो नहीं आता था, कुछ भी नहीं, कोई सवाल की ज़रूरत ही नहीं, जो मर्जी आए करना है करते रहो। और साथ साथ एक कैफियत पैदा करनी पड़ेगी, मुझे तो नहीं मालूम, मैं आपकी अदालत में ये बात छोड़ता हूँ कि मुनाफे की कोई मकदार तो होगी जो सही होगी, मतलब कोई हद तो होगी। मेरी समझ में वो कैफियत नहीं आती। अगर मैं डॉक्टर हूँ, मेरे पास कोई इलाज आ जाए बीमारी का और मौत का, मिसाल के तौर पर, जिसको मैं खुद मार्केट करने जाऊँ, मैं कहूँ जी 1 करोड़ से कम की गोली नहीं होगी, क्या मुझे इजाज़त है इस बात की? कैन आई डू दैट? अच्छा, ये चीज़ फिर हर चीज़ में शामिल होनी चाहिए ना। प्रॉफिटेबिलिटी का कोई अंदाज़ा होना चाहिए। एक ज़माने में ये कैफियत थी कि मोनोपोलीज़ को ब्रेक किया जाता था। मुझे याद है AT&T, IT&T और मुख्तलिफ़ इदारे तोड़े जाते थे कि भाई ये मोनोपोलीज़ बनना अच्छा नहीं है। मगर फिर मगरिब को भी एहसास हुआ कि अब कब्ज़ा करके तो नहीं कर सकते, अब हम अपनी फ़ौज नहीं भेज सकते। ईस्ट इंडिया कंपनी भी, बाय द वे टू ऑल ऑफ यू, जिसने आकर हमारे ऊपर कब्ज़ा किया, वॉज इस्टेब्लिश ऑन अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। जब वहाँ चलना शुरू हुआ कि जब लोगों को एहसास हुआ कि यार ये कोलंबस और ये सब लोग जा जाकर बड़ी मालो दौलत ला रहे हैं, तो उन्होंने कहा इंडिया से भी कुछ मालो दौलत लाई जा सकती है। तो 200 या 300 लोगों ने स्टॉक्स 200 पाउंड्स का इन्वेस्टमेंट किया ईस्ट इंडिया कंपनी में, और मुस्तकबिल के अंदर फिर आप जानते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ। तो अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि कोई ना कोई इसके ऊपर डेलिब्रेशन हो। ये चैलेंज इस वजह से कि ये सदर जो आपने बुलाया यहाँ बोलने के लिए ना, उसका फाइनेंसेस से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मगर फाइनेंसेस के मुतासरीन में ज़रूर होगा। लिहाजा उन मुतासरीन के हवाले से मैं बड़ी अहमियत देता हूँ इस बात को कि लोगों को माशरे के अंदर अवेयरनेस हो। एंड कीप इन माइंड कि ऑल बैंक्स आर देयर ऑफ कोर्स टू मेक प्रॉफिट, बट एट द सेम टाइम किसी न किसी अंदाज से आप ये करिए। इस्लाम के अंदर एक है कि अखलाक जो है उनका ख्याल रखा जाए। वो क्या है? यानी जो इंस्ट्रूमेंट्स और जो स्पेशलिटी आपके पास है उसके साथ आप हमदर्दी से एम्प्लॉय करें। मिसाल के तौर पर आप ही के यहाँ अकाउंटिंग फर्म्स हैं, किसी के अकाउंट्स देखें, उसके अंदर उनको एहसास हो कि इसकी मदद की जा सकती है कि ये बेहतर हो जाए, तो वो एक इंसाफ की ताबे कैफियत के अंदर उसने काम किया। एट द सेम टाइम अगर उसको एहसास हो कि मैं इसको एक्सप्लॉइट कर सकता हूँ, तो उसकी भी कोई कानून और इस्लामी कानून ख़ास तौर पर जो मोरालिटी बेस्ड है वो इस बात की इजाज़त नहीं देगा। प्रॉफिट मेकिंग आप देखें अखबार में आ जाता, कायदे आज़म ने कहा क्या, होर्डिंग और ब्लैकमेलिंग के ऊपर।
ऑफ द मार्केट्स, कायदे आज़म ने कहा। मगर आज भी आपने शुगर और व्हीट के एतबार से जो स्कैंडल्स पढ़े, आज भी वही कैफियत है कि होल्ड कर लो, मुनाफा ज़्यादा कमाएंगे। सो देयरफॉर मैं बहुत अरसा ये सोचता रहा कि सूद से आज़ाद फाइनेंसिंग कैसी होगी। बहुत पढ़ा मैंने, प्रोफेसर खुर्शीद साहब को भी पढ़ा, वो लिखते रहते थे, बताते, और बहुत सारे लोगों को पढ़ा। और मेरे जहन में हमेशा ये मुश्किल आती थी कि देखो, अगर बैंक किसी को कर्ज़ा देता है, ये अगेन आई टॉकिंग लाइक अ लेमैन, तो बैंक कर्ज़ा देता है, बैंक के पास वो इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है कि वो देखे कि ये मुनाफा बख्श है इदारा या नहीं है। क्योंकि अगर आदमी चोरी करना चाहे तो बैंक डज़ नॉट हैव द कैपेसिटी टू लुक एट दैट। इतना उसको मुनाफा नहीं मिल रहा है इस कर्ज़े से कि वो एक्चुअली वहाँ आदमी बिठाकर ये देखे कि ये फ़ायदा है, मुनाफा बख्श है या नहीं है। एंड देयर विल बी अ टेंडेंसी कि लोग शरारत करेंगे और पैसा लेकर वो बुक्स को कुक करेंगे। अच्छा, सो दैट इज़ वाई आई थॉट कि कुछ ना कुछ, एक तो इन्फ्लेशन के एतबार से कुछ ख्याल रखना पड़ेगा कि आज जो पैसा दिया वो कल उसकी वर्थ वो नहीं है, कोई लिंकेजेस, और दूसरे ये कि प्रॉफिटेबिलिटी। मगर आज मैं देखता हूँ कि चाइना के अंदर और बहुत सारी जगहों के अंदर ये कैफियत बन गई है कि अगर जितना आप अपने माशरे को ये वाइट इकॉनमी की तरफ ले जाएंगे, इस बात का इम्कान होगा कि ट्रस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस इन द बिजनेस बढ़ जाएगा। तो चाइना के बहुत सारे बैंक्स ने ये किया कि तुम अपना जो सारी बुक्स जो हैं वो हमारे साथ लिंक्ड रखो, तो अगर तुम्हें 6 महीने बाद मज़ीद कर्ज़ की ज़रूरत है तो तुम्हें हम 1 घंटे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए और इंस्ट्रूमेंट्स को इस्तेमाल करते हुए तुम्हें बता देंगे कि कर्ज़ा हम दे सकते हैं नहीं दे सकते। तो दैट हैज़ रिमूव द पर्सन, इवन इन रिस्क मिटिगेशन, इन इंश्योरेंस एक्सेट्रा, इट हैज़ रिमूव द पर्सन, ब्रॉट वेरी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स इन टू प्ले, कि उस तरह से उसको आसानी से दिया जा सके। अच्छा, मैं आखिर के अंदर एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ, और वो ये है कि जब तक आप अपने पुअर सेगमेंट्स, अच्छा पुअर सेगमेंट्स में आज उस तरह से पुअर तो नहीं है मगर औरत भी है। औरत को आपकी मईशत के अंदर, एंड दैट्स अ गुड एग्जांपल राइट हियर, इफ आई वर टू लुक एट वुमेन, तो आई वुड हार्डली काउंट देम 5 और 6, 7, 8 मे बी। औरत की गुंजाइश आपने पैदा नहीं की है, और औरत को इन्वॉल्व किए बगैर कोई माशरा तरक्की नहीं करेगा। आजकल की दुनिया में तो सवाल ही नहीं पैदा होता। लिहाजा 52% और 51% ऑफ द पॉपुलेशन सिटिंग एट होम। मगर स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के हवाले से, या वो जो बांग्लादेश के इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने नीचे लोन देना शुरू किया, सोसाइटी हैज़ फाउंड कि द मोस्ट रिलायबल एंटिटी इन अ सोसाइटी आर वुमेन, जो वापस भी करती हैं अच्छी तरह से, हैं। तो लिहाजा आप सारी चीज़ों के अंदर मेरी आपसे दरख्वास्त है कि जैसे जैसे आई हैव हैड कंटिन्यूसली बीन मीटिंग डॉक्टर रज़ा बाकर ऑन अ नंबर ऑफ़ इश्यूज़, जिसके अंदर मैं समझता हूँ कि डिजिटल इकानमी जैसे बढ़ेगी, औरतों को के साथ ये जो एहसास प्रोग्राम के ज़रिए वो अकाउंट खोल सकें। मैं एक और लेवल पर उलमा के साथ मिलकर ये बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर वरासत के एतबार से इंसाफ नहीं होता, जो कुरान ने, जहाँ इस्लामिक बैंकिंग की आप बात करें और फाइनेंसिंग की, तो इफ़ यू डू नॉट एम्पावर वुमेन at least the way that Islam wanted them to be empowered, तो नतीजा ये है यू आर डूइंग अ मेजर डिससर्विस। तो उस लेवल पर भी हम बात करते रहेंगे, और उलमा के साथ काफ़ी इसमें पेशरफ्त हुई है कि हाउ कैन दे प्ले अ पार्ट इन दैट। मगर मैं समझता हूँ कि जो डिप्राइव सेक्टर्स हैं उसके अंदर मैं रज़ा बाकर साहब के साथ और बैंक के बहुत सारे लोगों के साथ भी मिलता रहा हूँ कि जो डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं, ये भी कमज़ोर तबका है माशरे का, इसको भी अपने यहाँ लाएँ, औरतों के मामले के अंदर इनकरेज करें। तो ऑल योर इंस्ट्रूमेंट्स शुड बी डायरेक्टेड टूवर्ड सोसाइटी। सो आई बिलीव, मैं आपसे थोड़ा सा जो आज आपकी गुफ्तगू है उसके अंदर सिर्फ ये चाशनी डालना चाहता था कि इस्लाम की स्पिरिट और रियासत मदीना की जो स्पिरिट है वो है गरीब को साथ उठाने की, और मौजूदा ज़माने की जो कैपिटलिस्टिक स्पिरिट है उसमें गरीब इज़ जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ लेबर टू, जो जिसको सिर्फ इस बुनियाद पर रखा जाए कि सप्लाई एंड डिमांड के एतबार से उसकी तनख्वाहें होंगी, अदरवाइज़ निगलेक्ट किया जाए। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें आपके जहनों के अंदर छोड़ी हैं, मेरे अपने सवालात भी और मुस्तक़बिल के सवालात भी, जिसके अंदर मैं समझता हूँ कि रियासत मदीना कॉन्सेप्चुअली इज स्ट्रगलिंग टूवर्ड्स दैट अ मोर moral world than the exploitative world of today. Thank you, ladies and gentlemen. Assalamu alaikum.